Good morning, sir. Yes, good morning. So today we will go through that lab, what we have left on Monday. So we will complete that one. Okay. Am I audible properly? Am I audible properly? Yes, sir. Okay. So let me share that virtual platform. Are you able to see the virtual lab page? Are you able to see the virtual lab page? Yes, sir. Okay. So as we can see here that we have to verify the truth table of RS, JK, T, and D flip-flops. So already we have seen the RS flip-flop, SR flip-flop, and JK flip-flop. So we also have to see T and D flip-flop. So these T and D flip-flops are just made from this RS and JK flip-flop itself. Okay. So here we have the theoretical part in which all of you have to go through. So we have seen the SR flip-flop, where we have seen that here it is clock input is given, S and R inputs are given, output as Q and state. So what that state means. So in case of RS flip-flop, as here NOR gate is used. So in this case just opposite हुआ है, मतलब जब S0 है और R1 है, in that case, okay, let me use the pen. So here you can see that here S is 0 and R is 1. In this case, the output Q is 0. So it is the reset condition, or the state is known as the reset. When S is 1, R is 0. In that case, the output is 1. So this is known as set.
and we have already seen that in case when S and R both are high, in that case the output is questionable. So this state is forbidden. Okay. Next, so what we can see here that we have 4 states or 4 combinations in which when S and R both are 0, in that case the output, जो भी output आता है, there is no change, मतलब वो previous state जो पहले था, यानी कि अगर state को हम बोले Qn plus 1, so we have already seen that Qn plus 1 was known as the next state and Qn को हमने कहा था present state. ओके okay? तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी जब हम काउंटर डिजाइन करेंगे ना, तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट हमें क्या चाहिए, तो बेस्ड अपॉन दैट वी विल डिजाइन द काउंटर्स. ओके, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फ्लिप फ्लॉप का ये जो बेसिक्स है ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पर यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वहां पर भी क्लियर नहीं होगा. ठीक है ना. सो अगर किन्हीं को कहीं भी डाउट है तो वो पूछेंगे. Next we have D flip flop. So as you can see here, that here we will have AND gate and OR gate in RS flip flop or SR flip flop, and here you can see that instead of AND gate, here a NAND gate is used, and what you can see here that it is nothing but an SR flip flop, as you can see here, the S and R. But one thing what is done here, that एक जो input है, should I increase the page size of the page so that it will be more clear? It is not increasing. Okay, just wait for a minute. Is it visible clearly? Is the picture of this flip-flop, D flip-flop is visible clearly to you? Yes, sir. Okay. So what you can see here that यहाँ पर जो inputs है, एक input ये है और दूसरा input को क्या किया गया है, inverter लगाकर दूसरा input apply किया गया है. So this is nothing but a D flip flop. SR flip flop में हमने क्या देखा, SR flip flop में हमने देखा था और Qn plus 1 मतलब next state जो है, तो प्रेजेंट यहाँ पर S और R जब 0 0 था, देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेट विल बी, देयर विल बी नो चेंज. मतलब अगर ये प्रेजेंट स्टेट था तो नेक्स्ट स्टेट भी प्रेजेंट स्टेट के बराबर है. 0 और 1 के केस में इट इज अ 0, 1 और 0 के केस में इट इज 1 एंड 1 1 के केस में इट इज फॉरबिडन. यही हमने देखा है ऐसा फ्लिप फ्लॉप में. ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है, अगर यहाँ डी पर हम कुछ इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा. ओके, लेट अस सी. डी पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो डी पर अगर 0 पुट करते हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ 0 आएगा और यहाँ क्या आएगा, नीचे वाले एंड गेट नैंड गेट में 1 आएगा. तो व्हाट वी कैन सी हियर दैट ये वाला कॉम्बिनेशन काम कर रहा है. तो अभी जो ये पर्टिकुलर फिगर है, इस पर्टिकुलर फिगर में जो इनपुट है इट इज बेसिकली एन एसआर फ्लिप फ्लॉप. एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब हमने ये कॉम्बिनेशन लगा दिया, मतलब एक नॉट गेट लगा दिया इनपुट में, यानी कि दोनों इनपुट इन्वर्टेड इनपुट्स जब सिर्फ हैं, तो हमें सिर्फ एसआर फ्लिप फ्लॉप के ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे. मतलब अगर हम डी पर 0 इनपुट देंगे देन वी हैव कॉम्बिनेशन एज 0 1. तो 0 1 के केस में आउटपुट जो Qn plus 1 आता है दैट इज नथिंग बट a 0. जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में जब 0 और 1 था तो हमें नेक्स्ट स्टेट 0 मिलता है. इन द सेम वे डी फ्लिप फ्लॉप ये जो है, यहाँ पर अगर इनपुट हम अगर 0 दें, डी पे अगर 0 इनपुट दें तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा. मतलब ये कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है 0 वही 0 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम यहाँ 1 दें, 1 इनपुट अगर देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और तब यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नॉट गेट लगा है. सो हमें 1 0 वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1.
यानी कि जब 1 देंगे डी पर तो हमें 1 मिलेगा, और जब 0 देंगे तो हमें 0 मिलेगा। सो दिस डी फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट अ डिले फ्लिप फ्लॉप। डिले फ्लिप फ्लॉप क्यों कह रहे हैं कि डी पर जो भी इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट हमें नेक्स्ट स्टेट में मिल रहा है। सो यहाँ पर अगर हम Q1+1 देखें तो Q1+1 यानी नेक्स्ट स्टेट जो मिल रहा है, दैट नेक्स्ट स्टेट विल बी डिपेंडेंट अपॉन दी whatever the input is present here। तो जो इनपुट यहाँ पर दे रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल रहा है, यानी कि 0 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है। सो दिस इज नोन एज अ डिले फ्लिप फ्लॉप। क्यों डिले फ्लिप फ्लॉप? क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी एक अगर हम सर्किट को दिखा रहे हैं, सो दैट सर्किट विल हैव सम प्रोपेगेशन डिले। तो यहाँ पर ये जो सर्किट का पार्ट है, इस सर्किट के पार्ट में यहाँ पर 2 स्टेजेस है। एक स्टेज है ये एंड गेट वाला और दूसरा स्टेज है ये नॉर गेट वाला, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेज और देखें तो एक नॉट गेट वाला भी यहाँ पर स्टेज है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ गया, तो एक प्रोपेगेशन डिले आएगा इस पर्टिकुलर इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ डी फ्लिप फ्लॉप और अ डिले फ्लिप फ्लॉप। अब जो भी हमने यहाँ पर देखा वो सारा कुछ यहाँ पर टेबल के फॉर्म में समझाया हुआ है। लाइक हम यहाँ पर दिखाया गया है इनपुट और आउटपुट। इनपुट में यहाँ पर 3 चीजें दिखाई गई हैं, एक डी है, एक रीसेट है और एक क्लॉक है, ठीक है। तो क्लॉक ये आप अलग अलग देख सकते हो। ओके, लेट मी पुट द पेज। ओके, सो आई हैव टू डिलीट दैट। वेयर इज द इरेजर? Eraser. So here what you can see that we have sorry, we have the input as D and the reset value is 0. So in that case what you can see here, the values whatever we are getting is 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी यहाँ वैल्यू D का लिया जा रहा है वही आउटपुट है। ओके, नेक्स्ट स्टेट में जब यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है। अभी यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ जब 1 है तो यहाँ 0 आ रहा है। ऐसा क्यों है? तो लेट अस सी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करके देखें। ओके, सो बिफोर गोइंग थ्रू दैट we can go through here that a D flip-flop is a single input, single data input. This type of flip-flop is obtained from SR flip-flop by connecting the R input through an inverter, and S input is connected directly to the data input. The modified clocked SR flip-flop is known as D flip-flop, is shown below. From the truth table SR flip-flop, we can see that output of SR flip-flop is unpredictable state when the inputs are same and high. Okay, so in many practical applications these input conditions are not required. So these input conditions can be avoided by making them complement of each other. Okay, so as we have seen in the case when the data input is high for both the inputs, so यहाँ पर जो रीसेट दिया गया है, जब यहाँ पर डी इनपुट पर 1 दें। ओके, सो लेट अस सी, डी इनपुट पर जब हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं, सो डी पर जब 1 पुट करेंगे then we will have a 0 here and we have a 1 here. In that case the clock is 0. क्लॉक को अगर 0 पुट करें तो we will have a 0 here and a 0 here. So what will the output of this S? What will the output of this S? You can see that S is 1 because for the first NAND gate we have 0 0 at both the inputs, and for the second NAND gate we have 0 here also. तो यहाँ पर अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ओके, सो हमने ये ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेट आएगा यानी कि जो आउटपुट आएगा दैट विल बी अनप्रेडिक्टेबल और फॉरबिडन। ओके, सो यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू आ सकता है बेस्ड अपॉन दैट।
सो 0 1 0 के केस में, यानी कि क्लॉक जब 0 है उसके लिए बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर फिर से यहाँ 1 पुट कर रहे हैं एंड क्लॉक इज एंड रीसेट इज हाई एंड क्लॉक इज 0, अगेन यहाँ पर देखें वी हैव 1 एज इनपुट, सॉरी यहाँ पर हमने 1 लिखा था तो ये 1 होता ना, ये 1 होगा तब भी ये 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि वी हैव क्लॉक एज 0। इस केस में फिर से क्लॉक यहाँ पर 0 है और क्लॉक का वैल्यू यहाँ पर फिर से 0 है, तो यहाँ पर क्लॉक का वैल्यू अगर 0 होगा तो इन दोनों नैंड गेट का आउटपुट 1 1 ही आएगा। अगर यहाँ 1 1 आएगा सो ये तो फॉरबिडन होना चाहिए था, बट यहाँ पर ओके, सो रीसेट वाला जो पार्ट है वो 1 दिया गया है। Okay, so it is not clear to me also. So, okay, we will see this truth table later. Okay, we will see this portion of truth table later. We don't want to waste time in this truth table. Okay, let us move further. JK flip flop, and we have seen the JK flip flop in the last class. The JK flip flop इस केस में भी हमें वही सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जो कि SR फ्लिप फ्लॉप में मिलता है, बट यहाँ पर सिर्फ एक अंतर क्या आता है, एक अंतर सिर्फ आता है ये 1 1 वाले कॉम्बिनेशन में। 1 1 वाले कॉम्बिनेशन में when J and K both the inputs are high, in that case we have a toggle. Toggle मतलब क्या है कि अगर प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 आएगा, और प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 आएगा। ठीक है, इन केस ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। और बाकी का जो 3 पार्ट है, बाकी का जो 3 कॉम्बिनेशंस है, यहाँ पर हमें वैसे ही आउटपुट मिलेगा जैसा कि SR में मिला था। लाइक जब 0 0 है, जब 0 0 है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, नो चेंज इन दी आउटपुट। ओके, नो चेंज इन दी आउटपुट मतलब जो प्रीवियस स्टेट होगा वो नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो प्रीवियस स्टेट के बराबर होगा। जैसे हम यहाँ पर देख लें, प्रेजेंट स्टेट जब 0 लिया गया तो नेक्स्ट स्टेट 0 आया, प्रेजेंट स्टेट जब 1 लिया गया तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 आया। ये हमने SR फ्लिप फ्लॉप में पहले भी, सॉरी JK फ्लिप फ्लॉप में हमने ये देखा है। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी दैट फॉर द केस 0 1 हमने ये ऑलरेडी देखा है। 0 1 के केस में आउटपुट जो आता है वो रीसेट होता है। रीसेट मतलब the output will be 0, whatever be the present state, the next state will be 0। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं that जब present state 0 था तो next state 0 था, present state जब 1 था तब next state इस केस में भी 0 है। तो इस तरह से क्या है कि present state कुछ भी हो, next state 0 ही आएगा। ओके, in the next combination when the input is 1 0, that is J and K is 1 0, in that case the output will be set। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, नेक्स्ट स्टेट 1 ही आएगा। लाइक जैसे हम देख लें यहाँ पर कि प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 आ रहा है, और प्रेजेंट स्टेट जब 1 है तो नेक्स्ट तब भी नेक्स्ट स्टेट 1 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि आउटपुट ऑलवेज सेट इन द कंडीशन व्हेन J and K both J and K are 1 and 0 respectively। okay, so let us move further। so अभी जो T flip flop है, ये T flip flop है, this can be made using this JK flip flop। yes, so here what we can see, T flip flop, here T stands for toggle। okay, so toggle वाला जो कंडीशन है वो क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दिस इज नथिंग बट JK फ्लिप फ्लॉप। सो हियर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो दोनों इनपुट्स हैं, लाइक J और K जो 2 इनपुट्स थे उनको शॉर्ट कर दिया गया है। ओके, जब शॉर्ट कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही गेट पर
फर्स्ट एंड सेकंड पर दोनों ही पर क्या होगा, सेम इनपुट आएगा। सेम इनपुट आएगा मतलब जेके का जो कॉम्बिनेशन था वो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 था। और इसके लिए हमें आउटपुट्स क्या मिल रहा था, आउटपुट्स हमें मिल रहा था नेक्स्ट स्टेट will be equal to present state in the first case. In the second case we have reset condition. In the third case 1 0 we will have output, the next state will be 1, and in this case this is qn bar. qn bar का मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेट आएगा वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जो भी प्रेजेंट स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेट उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर भी देख लें। ओके, सो यहां पर देख लें अभी फॉर टी as 0, so in this case the clock is high, clock pulse is high। और इन दिस केस जब हम क्या देख रहे हैं तो इन दिस पर्टिकुलर केस हमें दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे। दो कॉम्बिनेशन क्या मिलेंगे, हमने क्या कहा कि जो टी फ्लिप फ्लॉप है, इस टी फ्लिप फ्लॉप में और जेके फ्लिप फ्लॉप में अंतर क्या है कि सिर्फ ये जो पोर्शन है वो शॉर्टेड इनपुट है। शॉर्टेड इनपुट है मतलब एक ही इनपुट दोनों ही गेट्स में गया है। तो वी विल हैव ओनली दीज टू कॉम्बिनेशंस। तो हमें टी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ ये मिलेगा, मतलब जे और के दोनों ही सेम होगा 0 0, और जे और के दोनों ही सेम होगा 1 1। तो यानी कि अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो आउटपुट जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट फॉर 0 there will be no change, and for 1 we will have the qn bar। Okay, so you can see here that for t is equal to 0 we have q as the output। q मतलब जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के बराबर है, और जब 1 है इन दैट केस we will have q complement। okay sorry। और जब क्लॉक लो है, क्लॉक जब लो है इन दैट केस यहाँ पर इनपुट कुछ भी हो वी विल हैव नो चेंज, नो चेंज कंडीशन मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो डी जो है वो जे और के दोनों से ही बन सकता है, बट टी फ्लिप फ्लॉप इज विल बी मेड फ्रॉम जेके फ्लिप फ्लॉप। क्यों, टी फ्लिप फ्लॉप को हम एसआर से नहीं बना सकते हैं। क्यों, इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप में 1 1 वाले कंडीशन में हमें जो आउटपुट मिलता है वो अनडिफाइंड आउटपुट मिलता है। किसके केस में, एसआर के केस में। एसआर के केस में 1 1 वाले केस में वी विल हैव एन अनडिफाइंड आउटपुट। सो टी फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड basically from JK flip flop। Okay, so this is all about the theoretical portion of this flip flop। Okay, let us move to, okay, so there is a pre-test you can do, you will do it, procedure। So all the things will remain the same as we have seen in the previous portions। Okay, so SR flip flop, first we have to simulate the SR flip flop। so SR flip flop में हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या क्या है, we have the power input on VCC। so here is a NAND IC of NAND gate। okay, so based upon the inputs S and R we have a clock pulse also। so clock is applied at pin number 2 and pin number 5, and the input S and R is given at pin number 1। so जो first NAND gate है, okay, let me draw it। okay, so let it be gate number 1, gate number 2, gate number 3 and gate number 4। okay, so यहाँ पर कुछ ऊपर छूट रहा है, let me see that। नहीं छूट रहा है।
Okay. So here we have to put the values of S and R with the clock pulse. So we can see or we can observe the values. Okay. So let us apply the power first. Then with the clock low, okay, clock बटन को मैं ऑन नहीं कर रहा हूं, मैं S और R यहाँ पर देखता हूं. तो अभी अगर वैल्यूज पुट किया जाए तो व्हाट वी कैन सी हियर. Okay, so in this condition, what you can see here. So as I have pressed add button, यहाँ पर आप देख पा रहे हो add button है, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पर add button है. तो जैसे ही add button मैंने प्रेस किया, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है, क्लॉक मैंने 0 लिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लॉक स्विच ऑफ है. एस और आर का वैल्यू 0 है क्योंकि मैंने एस और आर दोनों में से किसी को भी ऑन नहीं किया है. ठीक है, तो एस और आर 0 है. इन दैट केस वी हैव द प्रेजेंट स्टेट. Okay, qn minus 1 and qn minus 1 bar. So qn minus 1 is the previous state and q is the next state. जैसे कि हमने जो यहाँ पर लिया था पहले, वो हमने लिया q1 plus 1 को next state और previous state को qn लिया था. यहाँ पर क्या दिया गया है, qn minus 1, यानी कि next present state जो है वो n minus 1 है, यानी कि previous state. Am I audible? Yes, sir. Okay, it was disconnected for a short period of time. You cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Okay. Let me share the whiteboard again. Sorry, the virtual lab platform. Is a page of virtual lab is visible? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि हमने जो पहले क्या दिखाया था, हमने दिखाया प्रीवियस स्टेट को Qn से और नेक्स्ट स्टेट को Qn plus 1 से दिखाया. यहाँ पर उसी को दिखाया गया क्या, प्रीवियस स्टेट को n minus 1 से दिखा रहे हैं और प्रेजेंट स्टेट को Qn से दिखा रहे हैं. तो इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. This is previous state and this is next state. तो अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस हो सकता है. ठीक है, तो Qn अगर दिखा रहे हैं प्रेजेंट स्टेट को तो Qn plus 1 होगा नेक्स्ट स्टेट, और अगर प्रीवियस स्टेट को दिखा रहे हैं Qn minus 1 से तो नेक्स्ट स्टेट Qn होगा. आई थिंक इट इज वेरी क्वाइट क्लियर टू यू ऑल. सो यहाँ पर हमने क्या किया, जब Q को हमने Qn minus 1 ये था क्या, ये हमारा प्रीवियस स्टेट था. तो प्रीवियस स्टेट यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लॉक को 0 कर रखा है. ओके, लेट अस स्विच ऑन दी क्लॉक. क्लॉक को ऑन किए और यही सेम कॉम्बिनेशन के लिए ही हम इनपुट देते हैं. तो व्हाट यू कैन सी हियर दैट द प्रेजेंट स्टेट इज you can see here the present state or the next state is 0 1. present state क्या है, present state भी 0 1 है. okay, let me take the pen. okay, so यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट वो 0 1 था और नेक्स्ट स्टेट भी 0 1 है. इसका मतलब है देयर इज नो चेंज. नो चेंज को हम दिखाते हैं Q1 से ही दिखाते हैं. ठीक है, अभी थर्ड कॉम्बिनेशन ले रहे हैं. थर्ड कॉम्बिनेशन में हम क्या ले रहे हैं, दैट S को हम हाई कर रहे हैं, क्लॉक को हाई कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट स्टेट जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, देन व्हाट वी विल हैव, यू कैन सी हियर that for the state when the clock is high, for S1 and R0, the previous state is 0 1, so 0. So the previous state is, you can see here the previous state is 0
and the next state is 1. So this is the condition for set, है ना. हमने ऑलरेडी देखा है कि जब भी S पर हम हाई पुट करते हैं और R पर लो पुट करते हैं, इन दैट केस प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, यानी कि प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो, प्रीवियस स्टेट यहाँ पर 0 है, नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट 1 ही आएगा. ओके, सॉरी. तो एक्चुअली हम यहाँ पर जो भी ड्रॉ कर रहे हैं या जो भी वैल्यूज हम इनपुट कर रहे हैं, फॉर दैट वी आर ऑल्सो गेटिंग द क्लॉक डायग्राम. यू कैन सी हियर, you can see here, you can see the clock diagram. Okay, so for q bar 1 and q bar 0, we have q1 q0, r is equal to 1, r is equal to 0, s is equal to 1, s is equal to 0. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले हमने क्या पुट किया था, s और r को दोनों ही 0 पुट किया था. तो आप यहाँ देख सकते हो कि s और r को हमने 0 पुट किया था और क्लॉक को हमने क्या रखा था, पहले 0 रखा था. तो क्लॉक 0 है, इन दैट केस s और r को भी हमने 0 रखा था. ओके, इन दैट केस हमें क्या मिला था, जो नेक्स्ट स्टेट था, या नेक्स्ट स्टेट कहाँ दिखा रहा है, q is equal to 0 and q is equal to 1. ओके, तो यहाँ पर q is equal to 0 आ रहा है. आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आप लोगों को आई थिंक पता चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का लाइन है ये. ओके, यहाँ तक लाइट ब्लू कलर का लाइन है, उसके बाद यहाँ से ये ऊपर गया है. ऊपर गया है क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्लॉक यहाँ पर हाई लिया गया है. ओके, यहाँ पर देख रहे हो क्लॉक हाई लिया गया है. इन दैट केस s का वैल्यू भी हमने 1 लिया था. तो s का वैल्यू जब हमने 1 लिया, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू क्या आया, वो भी 1 आया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू भी 1 आया. तो इस तरीके से टाइमिंग डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं. सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंगली टाइमिंग डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल डू दिस बाय योरसेल्फ. अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. इतने में किन्हीं को कोई डाउट है? No, sir. So what is the difference between SR flip-flop and JK flip-flop? What is the difference between SR flip-flop and JK flip-flop? Sir, last में toggle का option रहता है. For the combination when both the inputs are high, in that case, यानी कि SR flip-flop और JK flip-flop में अगर दोनों inputs को high रखते हैं, in that case, SR flip-flop के केस में हमें undefined output मिलता है, and in case of JK flip-flop, we have a toggle output. Toggle output means what? जो भी output पहले से था, output में next state जो आएगा वो previous state का complement होगा. ठीक है, तो as we have done this, in the same way, we can do the simulation for another flip-flop also, like D flip-flop and T flip-flop. Let us see the T flip-flop. Okay, so here also we will have the two ICs where there is one IC 7410, which is a 3-input NAND gate, and we have a 7400, which is a 2-input NAND gate. Okay, so here we need to see the T flip-flop, the diagram for T flip-flop. तो T flip-flop के लिए हम क्या जानते हैं? T flip-flop के केस में हम क्या जानते हैं? That for T we have the present state अगर हम मान लें और next state अगर हम मान लें Q1 + 1. Okay, so based upon this this platform, the previous state is Qn - 1 and the next state will be Qn. Okay. Sorry. For the case when T is 0, okay, I am taking the previous state
as 0. So what will be the next state? Anybody tell me? What will be the next state? What will be the next state? जब मैं पूछता हूं तो कोई कुछ बताते नहीं हो और फिर यस क्या बोल रहे हो? 0 सर. 0. So the next state will be 0. क्यों? क्यों 0? सर 0 0 में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 नो चेंज होता है इसमें. Yes, very good. So if I am taking the t input as 0 and the previous state as 1, so the next state will be what? Next 0 0. So what you have told? Reset. नहीं, आपने अभी कहा कि जब 0 होता है, in that case there is no change. No change होता है ना? आपने Yes sir. no change अगर होगा तो next state क्या होगा? This is the previous state. And this is next state. Q1 is next state. So if the previous state is 1, the next state will also be 1. क्यों? क्योंकि जब t 0 0 है, t 0 है मतलब क्या हुआ? जैसा कि JK फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या देखा था? 0 0 था और नेक्स्ट स्टेट जो कि Qn+1 होता है या ओके, सो यहाँ पर हम Q1 ले रहे हैं. सो लेट अस टेक Q1 इटसेल्फ. Okay, so JK flip flop के केस में when both the inputs are 0 0, the next state will be equal to the previous state. Is it clear? For 0 1, you will also get always get 0. For 1 0, you will always get 1, and for the last case 1 1, you will always get what? Toggle. Yes, bar. previous state का complement. ओके, तो जो टी फ्लिप फ्लॉप है वहां यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ ये दोनों कॉम्बिनेशन काम आते हैं, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है वो शॉर्टेड होता है. तो जेके फ्लिप फ्लॉप अगर हमारे पास है, उसके दोनों इनपुट को अगर हम शॉर्ट कर दें, क्लास विल एंड नाउ. सो ऑल ऑफ यू विल ज्वाइन अगेन. तो यहाँ पर फॉर दिस पर्टिकुलर केस के लिए हमें क्या मिल रहा है? 0 0 जब भी आएगा तो हमें नो चेंज मिलेगा, और जब भी 1 1 होगा तो हमें प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा नेक्स्ट स्टेट में. ये क्लियर है सभी को? यस सर. ये बहुत ही बेसिक है जो कि आपको क्लियर करना ही होगा, नहीं तो आपको काउंटर कुछ समझ में नहीं आएगा. मैं बार बार बोल रहा हूं, किन्हीं को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछें.